Bismillahirrahmanirrahim. Organic chemistry. Organic is very easy. Only we got to understand what we're saying, and we got to keep the things in our mind. Organic chemistry. We start with the carbon, is the chemistry of carbon and hydrogen. Usually we say is the study of the compounds of carbon. Study of compounds of carbon. All the compounds of carbon are organic? No, no, no. Not all the compounds of carbon. Not organic compounds. Not all compounds of carbon are organic except what are accepts? Carbon monoxide, carbon dioxide, carbon disulfide, carbonates, hydrogen carbonates, cyanides, carbides, carbides, cyanides. ये cyanide है CN minus. That's it. They are not organic. Rest of all of them are organic. We done in O levels. Carbon make 4 single covalent bond. Carbon make 2 double covalent bond. In case of this one, 4 single here, 2 double here, 1 double 2 single here, and 1 triple 1 single here, or you can say like this. So carbon makes loads of compounds: single bond, double bond, triple bond, 4 single, 2 double, 1 double, 2 single, 1 triple 1 single. Okay, this property of carbon is called, carbon keeps on making different bonds with itself. तो इस प्रॉपर्टी को कार्बन की क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. कैटिनेशन. Catenation is the binding of an element to itself through covalent bonds to form chains or rings. Carbon is the most common element that shows or exhibits catenation. तो ये हमारे पास हमें मालूम है, ये हमने क्या कहा है, व्हाट वी सेड. Sorry, not well. Carbon, organic chemistry is the chemistry of carbon, study of the compounds of carbon. Or not all the compounds of carbon are organic. कुछ नहीं होते, वो ये हैं. Carbon makes single, double, triple covalent bond. Carbon keeps on making double, triple covalent bond with itself. इस property को कहते हैं catenation. It is the ability of an atom to form different types of bonds with itself. Single, double, triple, कुछ भी अपने साथ बनाती रहे is called catenation. Next. आगे हम चलते हैं. वो हमें बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें से, ठीक है, जो अब हम पहला दिन पढ़ेंगे. फॉर्मूला टाइप्स. कितने टाइप के फॉर्मूलाज हैं? नंबर 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला,
structural formula, and the fourth one is skeletal formula. Skeletal formula, write this down, please. Skeletal formula. We know empirical formula. Let me check. What is empirical formula? इधर देखिएगा. C6H12 is molecular formula. मोलिकुलर फॉर्मूला. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनता है? CH2. इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा? वी ड्रॉ इट. स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेड अभी ड्रॉ करते हैं. मोलिकुलर फॉर्मूला आपको मालूम हो गया. लाइक दिस इज C6H12. 1 2 3 4 5 6. तो एक डबल बॉन्ड कहीं लगाना पड़ेगा. इसके कहते हैं मोलिकुलर फॉर्म. इसको कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेड, showing all the bonds. This is called displayed formula. इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बन जाता है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फॉर्मूला. अब इसका स्केलेटल ड्रॉ करते हैं. देखिएगा स्केलेटल के लिए थोड़ी देर बाद स्केलेटल के लिए आएंगे. ठीक है. जस्ट रिमेंबर व्हाट इज स्केलेटल फॉर्मूला. स्केलेटल फॉर्मूला क्या शो करता है? बाकी वी नो. व्हाट इज स्केलेटल फॉर्मूला? In easy word, a formula which shows carbon skeletal. Carbon skeletal. What does it mean? Let's see in here. This is carbon skeletal. And the functional group associated to it. A formula which shows carbon skeletal and the functional group associated to it. Only. Remember one more thing. Hydrogen atoms attached to the carbon or bonded to carbon are not shown. It is drawn in a zigzag pattern. In a zigzag way. Like this. No carbon and no hydrogen is shown. Look at this. This is CH3, CH2, 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 CH3. Let's see. We draw the zigzag pattern for this. How many carbons are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इस तरह बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6. ये कार्बन है. 1 2 3 4 5 6. We have not shown any of the hydrogen which is directly bonded to carbon. इसको कहते हैं skeletal formula. What we have shown, only the carbon skeletal is shown. Nothing else is shown in here. Carbon skeletal is shown और हमने कुछ नहीं शो किया. इस तरह एक और बनाते हैं. वो ये है CH3 CH2 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 OH. And what he said, and the functional group associated to it is shown. A formula which shown the carbon skeletal and the functional group associated to it only. तो अब देखेंगे how many carbons है? 4. 1 2 3 4. ये हो गया 4 और ये आ गया OH. ये फंक्शनल ग्रुप भी हमने शो कर दिया है.
नेक्स्ट, देखते जाएंगे। ओके, आपने एक काम करना है, यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग इट डाउन एवरीथिंग इन योर ओन हैंड राइटिंग। और प्रैक्टिस भी आपने मेरे साथ करनी है। हमें कोई इसके साथ नहीं गर्ज कि हमें कितने दिन लगेंगे, लेकिन हमें इसके साथ जरूर गर्ज है कि हमें एक और हर चीज आनी भी चाहिए। ठीक है, मुझे जल्दी फिनिश नहीं करनी ऑर्गेनिक, लेकिन मुझे प्रॉपरली फिनिश करनी है ऑर्गेनिक। सो प्लीज राइट इट डाउन। यहां से राइट डाउन करें, ये नई चीज है, बाकी तो सब पुराना है। ये स्केलेटल फॉर्मूला इज द न्यू थिंग। और आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे भी होगी वो स्केलेटल बेस्ड होगी, मोस्टली स्केलेटल देंगे। और वो कहेंगे भी सही, आपको ड्रॉ द स्केलेटल। और आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बाय लुकिंग एट द थिंग्स यू कैन टेल, ओ दिस इज प्रोपेनॉन, ओ दिस इज प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन वन ओल, ओ दिस इज प्रोपेन टू ओल। ये आप देख के बताएंगे। अभी आपसे पूछना शुरू करेंगे, अभी नहीं। ये देखिएगा, जरा ड्रॉ कर लीजिएगा प्लीज। डन। यस सर। नेक्स्ट, अभी हम कुछ बनाते हैं आइसोमर्स ब्यूटेन के, ब्यूटेन के, फिर पेंटेन के बनाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे। इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारों के सारे स्केलेटल फॉर्मूलाज ड्रॉ करते हैं। ये है जी ब्यूटेन, CH, C4H10, CH3, CH2, CH3। अब कितनी कार्बन है? तीन, चार। सो 1 2 3 4, ये आपका आ गया ब्यूटेन। आपको ये डॉट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डॉट जो मैंने की है ना यहाँ पे, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ले, ये आपका ब्यूटेन हो गया। इसका एक और आइसोमर ड्रॉ करते हैं, उसका नाम क्या होगा एक और आइसोमर का? ब्यूटेन का एक और आइसोमर भी है, क्या नाम है उसका? CH3, CH, CH3, CH3। इसका नाम क्या है? मीथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। इसका ड्रॉ करते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज वी डिड इन ओ लेवल्स। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। और फिर मिथाइल ग्रुप लगाना है, ये जी मिथाइल ग्रुप लग गया। दिस इज द skeletal formula of methyl propane. Can we call it 2-methyl propane? Yes. Now isomers of pentane. Pentane is C5H12. So CH3. Hussain Raza, are you writing it down? Yes, sir. Good. Daniel, are you here? सर मैंने उसको कॉल की थी, उठा नहीं था। अब इसका जरा स्केलेटल ड्रॉ करते हैं। दो आपको समझ आ रही है बेटा? सर मैंने लेट ज्वाइन किया तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। आप लोग अपना टाइम एक मुकर्रर कर ले मेरे साथ, उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन किया करें प्लीज, ताकि मैं भी तंग ना हो और आप भी तंग ना हो। एक टाइम सारों को कहें कि पाबंद रहें कि कम टू द क्लास ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी नो एम्पिरिकल फार्मूला, वी नो मोलिकुलर फार्मूला, वी नो स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको हम डिस्प्लेड फार्मूला भी कह सकते हैं, स्केलेटल फार्मूला। स्ट्रक्चर इज बिट डिफरेंट दो, डिस्प्लेड फार्मूला और स्केलेटल फार्मूला। ये है डिस्प्लेड फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे आ जाता है मोलिकुलर फार्मूला। आपको मालूम है, दिस इज मोलिकुलर फार्मूला एंड दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। C6H12 मोलिकुलर, CH2 उसका एम्पिरिकल। और ये डिस्प्लेड मैंने आपको ये शो किया है, छह कार्बन बना के एक एक करके हाइड्रोजन, शोइंग ऑल द बॉन्ड्स।
और ये दूसरा जो लास्ट वाला मैंने किया है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। आगे आगे स्केलेटल फॉर्मूला, ए फॉर्मूला विच शोज द कार्बन स्केलेटल ओनली एंड द फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड टू इट। ये हमने कहा है हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन आर नॉट शोन। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिखा है, ये हेक्सेन है 6 कार्बन के साथ। तो उसका जिग जैग फॉर्मूला बनाते हैं। इट इज शोन इन द जिग जैग पाथ, इट इज ड्रॉन इन ए जिग जैग वे और जिग जैग पैटर्न। तो कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। तो एक कार्बन, ये देखें, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। समझ आ रही है आपको दुआ? जी सर। देखिए अब आप तो आप घर पे हैं, अब तो लेट आने का किसी का भी जवाब नहीं बनता, किसी का भी। अब तो हम घर पे हैं और हमारी क्लास इंशाल्लाह वी स्टार्ट बाय 11। इट कुड बी 11:15, 11:20, लेकिन 11 ठीक है। मैं कहीं ना कहीं होता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा मैं भी ऑन टाइम आपसे। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा, ये 4 कार्बन सब अपने टाइम पे आए। तो हमने कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4, और चौथा क्या है? और ओ एच। हमने पहले कहा है द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन इज शोन, ए फॉर्मूला विच शोज द कार्बन स्केलेटल तो शो किया, एंड द फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड टू इट वो भी शो कर दिया। हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन आर नॉट शोन, वो हमने कोई शो नहीं किया, वो हमने कोई शो नहीं किया, ठीक है। अब हम पेंटेन के आइसोमर्स कर रहे हैं। तो हमने कितने जिगजैग्स बनाने हैं? 5। कैसे? ये देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपके पास ये यूं 5 हो जाने चाहिए। ये इसका एक और आइसोमर बनाते हैं। इसके एक और आइसोमर का क्या नाम हो सकता है एनीवन? 2 methyl butane. ये CH3, CH, CH3, CH2, CH3। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप ये लगा दें। अच्छा, यहाँ लगाया, यहाँ भी लगा सकते हैं। ओ यस, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लग सकते हैं। रानी आई हुई है? यस सर। हाँ, रानियाँ। यस ठीक है, सर। सारी तीनों रानी आई हैं, ओनली वन रानियाँ। ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद एक और आइसोमर बनता है, क्या नाम बनेगा उसका? इसका नाम क्या है वैसे? Dimethylpropane. इसका नाम बनेगा मीथाइल ब्यूटेन। कैन वी कॉल इट 2 methyl butane? यस, ये भी ठीक है। एक और भी बनेगा, वो क्या होगा? वो ये होगा CH3। ये सब ओ लेवल में हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम बनेगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसको डाइमिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, 2 2 कहने की जरूरत नहीं है, या 2 2 भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आपको मालूम है ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और फिर 2 ब्रांचेस लगा दें। तो इसका स्केलेटल बनाने लगे हैं 1 2 3, बस। उसके बाद 4 5 कहाँ लगाएंगे? ये यूं लग सकता है, यस लग सकता है, इसके अलावा भी लग सकता है, यूं भी लग सकता है। ये ये भी ठीक है। ये आपका प्रोपेन हो गया और ये उसकी 2 ब्रांचेस हो गई। समझ आ रही है ये बात आपको? अब आगे चलते हैं, इथीन पे आते हैं, C6H12। ये क्या हो गया? हेक्सीन। इसको कैसे लिखेंगे? इसको यूं भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये ड्रॉ करना आता है कि नहीं आता? ये देखिएगा, ये हो गया हमारा हेक्स 1 इन। क्या नाम है इसका? हेक्स 1 इन। इसका स्केलेटल कैसे बनेगा? यूं बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। एक और भी बना सकते हैं, CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये हो गया। ये इसको कैसे बनाएंगे स्केलेटल इसका? 1 2 3 4 5 6। तो पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेते हैं, उसके बाद उसको वो कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान आया है। तो 1 2 3 और ये 4 के दरमियान ये डबल बॉन्ड आ गया। हमने हमेशा काउंट करना है कि डबल बॉन्ड, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing both the carbons attached to the double bond, number the carbon chain from the end closer to the functional group. Double bond is a functional group of alkene. याद है ये अब सबको? यस सर। गुड। इसके बाद एक और बनाते हैं, वो ये है CH3 CH2 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 CH CH3। अब ये देखिएगा यहाँ से, अब हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है ये हमने सोचना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान आया। कौन सा चूज करेंगे, पैटर्न ए या पैटर्न बी ऑफ नंबरिंग? ए वाला करेंगे या बी वाला सोचेंगे? बी। आई रिपीट, ए वाला सोचेंगे या बी वाला सोचेंगे? दोबारा सोचें। आई रिपीट समथिंग, select the longest carbon chain containing both the carbon attached to the double bond. Number one. Number two, number the chain from the end closer to the double bond. कौन सा closer to double bond है, 2 3 या 4 5? 2 3। 2 3, तो बी इज हो गया ना। अब इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो डबल बॉन्ड हमने कहाँ देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है। ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, 2 और 3 के दरमियान, समझ आ रही है ना? इसका नाम क्या बनेगा, हेक्स टू ईन, हेक्स टू ईन। इसी तरीके से हम और बनाते हैं जरा, ये ब्यूटानोल का देखते हैं, ब्यूटानोल। इसका नाम क्या है, बोलें क्या नाम है इसका? What is the name of this compound? ब्यूट 1 ऑल। ब्यूटान 1 ओल। ठीक है, वेरी गुड। 1 2 3 4 और ये OH लग गया यहाँ पे, ये हो गया ब्यूटान 1 ओल। ब्यूटान 2 ओल ड्रॉ करते हैं, CH3। घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। CH, अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सब चीजों का। 1 2 3 4। जिस दिन हमारी इंट्रोडक्शन सही तरीके से क्लियर हो गई, जिस दिन वी डन आवर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कहूँगा 50% फिनिश ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन के साथ ही। बाकी 50%, बाकी 25% कब खत्म होगी, जब हम अल्कीन फिनिश कर लेंगे। Once alkene is finished, 75% organic is done. The rest of all the organic for me is only 25%. The way I do it. तो आपको इंट्रोडक्शन और अल्कीन तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। ये डन। तीसरा करते हैं, एक और बनाते हैं, 1 2 3। ये इसका नाम बोलें क्या होगा? What is the name for this compound? ब्यूट ब्यूटेन 2 ऑल। The butane. Who is this then? ये ब्रांच कहाँ से है, ये फिर ये बताइए, ये कौन है? Any one of you? अच्छा, इसका तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बन लिख लें, यहाँ पे एक कार्बन,
दो कार्बन, ये देखें कार्बन लिखने का तरीका फिर बताता हूँ, इसका भी तरीका हम देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दैट्स इट। और चौथी कार्बन ये पहले लिख लें। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर ओ एच और इधर सी। बोलें जी, अब इसको यूं लिख लें, CH3 CH CH2 CH3। बोले अब क्या नाम है इसका? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डन, ये कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम द एंड, ओके सॉरी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing the carbon attached to the functional group. You cannot choose this longest chain। ये यहाँ पे भी तीन कार्बन आई हैं, याद रखिएगा। इस लॉन्गेस्ट चेन में भी तीन कार्बन आ रही हैं, यहाँ पे भी तीन कार्बन आ रही हैं। इज ए पैटर्न राइट और बी पैटर्न इज राइट? बोले इज पैटर्न ए राइट और बी राइट? हुसैन, कोई भी बताए। हुसैन रजा। सर दोनों ही सेम नहीं है। दोनों सेम है। थिंक करें, ओ लेवल में जाए ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड, सॉरी, कंटेनिंग कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। इसमें तो अटैच टू फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, बी में, ए में ऐसे ही है ना। हरीम, आर यू देयर? अफरा, शांजे, Yes. अरुष, ठीक है। तो ए इज रॉन्ग, रीजन इज दैट the longest carbon chain does not contain the carbon attached to the functional group, so A is right। अब इसका नंबरिंग का मामला आ गया, तो नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो कहां से नंबर करेंगे? 1 2 3, ये सही है। No. दुआ, इज दिस राइट नंबरिंग? कौन सी No. नंबरिंग सही है, बोलें। Opposite 3 to 1. बी सही है या सी सही है, बोलें। E. ए तो रॉन्ग कर दिया ना, ए तो खत्म हो गया, वो ए तो हो ही खत्म हो गया। बी सही है या सी सही है? ये देखिए, बी और सी, ये सी है, बी। C. सी है। नेमिंग इट, क्या बनेगा नेम के लिए? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डन। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये नाम है इसका। सॉरी, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल इज द नेम फॉर दिस वन। सब ओ लेवल है। तुरहान, आर यू देयर? यस सर। गुड। अब देखते हैं, जरा आगे चलते हैं, ठीक है। एक और लिखते हैं कंपाउंड, वो ये है एथेनोइक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कैन आई हैव द नेम फॉर दिस कंपाउंड प्लीज? Butanoic acid. ब्यूटानोइक एसिड, वेरी गुड। अब इसका वो लिखते हैं, इसका स्केलेटल फॉर्मूला देखते हैं। हाउ मेनी कार्बन आए हैं? 4, 1 2 3 4। सो ड्रॉ 4 कार्बन, 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन जो राइट पे है या लेफ्ट पे, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप, कैसे? ये यूं लगाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया और ओ एच लग गया। तुरहान, व्हाट वी डिड सो फार, आई गो थ्रू दैट, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
Yeah. What we did, we said, मैं जरा go through कर देता हूँ. We know the different formulas. What is the name? What is the formula for this one? What is the name for this formula? तुरहान, ये कौन है? ये कौन है? What is this and what is this? O levels. Oh, the first one is called hexane. The second one is called hexene. This is following the formula CnH2n plus 2 and this is following the formula CnH2n. मैं ड्रॉ करता हूँ हेक्सेन को. दिस वन सर सीन है 1 2 3 4 5 6. इसको कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला. डिस्प्लेड फॉर्मूला. इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा? ये यूं बनेगा CH3 CH2 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 CH3. ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला. इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 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 CH3. ये भी ठीक है without drawing the dash between them. We can write down like this as well CH3 CH2 4 CH3. ये भी ठीक है. They all are structural formulas. ठीक है. ये भी हो सकता है. अच्छा, एक और अब लिखते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं. उसको कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला. ये नई चीज है. स्केलेटल फॉर्मूला. ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स carbon skeletal and functional group attached to it, associated to it. Only the carbon skeletal and the functional group associated to it are shown. Hydrogen attached to carbon, hydrogens bonded to carbon is not shown or are not shown. सब बार बार देखें, समझेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन आर नॉट शोन. तो it is represented in a zigzag path. Zigzag pattern. Let's see. अभी हमने ड्रॉ किया था ये CH3 CH2 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 और CH3. What is the name? हेक्सेन. तो कितने कार्बन हैं यहाँ पे? 6 कार्बन हैं. तो 6 जिगजैग्स बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये जिगजैग. ये 6 हो गए. ये जो ईच डॉट है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल द हाइड्रोजन विच वर अटैच्ड टू द कार्बन आर नॉट शोन. तो ये हमने अपना शो कर दिया. दिस इज आवर हेक्सेन. नेक्स्ट. आज समझ आ रही है? तुरहान, आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं. इसी तरीके से अगर हो यूं CH2 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 CH2, इसका जिगजैग इसका बनाते हैं स्केलेटल. तो क्या बनेगा? ये बॉक्स. बस खत्म. और कुछ बन नहीं सकता इसका. इसी तरीके से यूं बनाते हैं. अच्छा, ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ सम आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन के कुछ और आइसोमर्स बनाते हैं. आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10. एक तो बन गया ये CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज वन आइसोमर. इसका जिगजैग कैसे बनेगा? 1 2 3 4.
दूसरा बनेगा CH3 दूसरा बनेगा ये बन गया। तीसरा भी बन सकता है, नहीं, इसका तीसरा कोई आइसोमर नहीं है। ब्यूटेन का नो अदर आइसोमर, बस खत्म होगी बात। लेकिन हम आते हैं ब्यूटीन पे। ब्यूटीन के आइसोमर क्या बनेंगे, लेट्स सी। ब्यूटीन का एक आइसोमर बनेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ब्यूटीन के बहुत काम आएगा हमारे पास। इसका नाम क्या बनेगा, इसका आइसोमर बनेगा स्केलेटल, यू बनेगा, ये स्केलेटल बन गया। दूसरा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगा यूं। ये तीसरा, इसका नाम, पहले वाले का नाम ब्यूट वन इन, दूसरे वाले का नाम ब्यूट टू इन, थर्ड वन आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ। CH3 CH2, तो इसका नाम बनेगा, इसका यूं बनेगा, ये मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम है मिथाइल प्रोपीन। और इसका आइसोमर सोचे कोई बना सकता है, लेट्स बनाए जरा, फ्यू मोर आइसोमर्स को ड्रॉ करें। Yeah. Can you could you draw another one? G, anyone? Remember, Can it all be of two? they are C4H8। जी, और क्या बनेगा? Can it be 2-methyl ethene? नहीं, हो ही नहीं सकता, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं बनेगा ना। ये देखिएगा, 2-methyl ethene यू सेड, ये 2-methyl ethene, ये कहा है ना आपने, ये तो आपका ब्यूट वन इन बनेगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लें जी, ये तो ब्यूट वन इन बन गया, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट जी बोले। Sir, what if the carbon is on the one on the top, one on the bottom? C Oh wait, then it's sick. C you select the longest carbon chain, yeah, ये भी नहीं बनेगा ना, ये तो Oh, ऑलरेडी ड्रॉन, ये देखिए ये ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे। another one is I draw it, CH2 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 CH2, क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, यू डन इन ओ लेवल में एक क्वेश्चन था ऐसा, उन्होंने हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन लिखे हुए थे, both of them have the same formula, both of them have the same molecular formula, different structure formula. They said how they are different from each other by any chemical test. Then you must have done it over there. You said A is the cyclohexane,
does not decolorize bromine aqueous solution. देखिएगा ना, this is A and this is, say, this is B. Both have the same molecular formula, C4H8, C4H8. How they are different? By any chemical test? Yes. Add bromine aqueous solution to A and add bromine aqueous solution to B. A will not decolorize bromine aqueous solution, but B will. याद है ना कुछ? Would you please answer me? Yes, sir. आंसर जरूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। नेक्स्ट, अब इधर आते हैं, एक और आइसोमर बनाते हैं C4H8 का। और कोई आइसोमर बनता है? यस, वो ये है CH2 CH2 और ये CH3, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये लिख लीजिएगा, all these four isomers. अभी we doing the introduction, which most of it we knew it from the very IGCSEs. इसका वो स्केलेटल कैसे बनाएंगे? ये 1 2 3 4 और ये बन गया। ऊपर वाले का कैसे बनाएंगे? ये ए का बनाएंगे, ये स्केलेटल फॉर्मूला बन गया। And now we are moving ahead. What it needs, a laws of practice, organic, और कुछ नहीं है। Now, very important topic is coming, isomerism. Very important topic. आइसोमरिज्म से पहले मैं जरा आपको सारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे कंपाउंड जो हमारे कोर्स में हैं। जस्ट आई विल गो थ्रू देम। समझ आ गई आपको? डन? Okay, most of the organic compounds we will be doing, they are these. Number one, introduction to all the compounds. Number one, we will be doing alkanes. We will be doing alkenes. We will be doing alcohols. We will be doing halogenoalkane. आप कहेंगे ये तो हमारे लिए नया है। नहीं नहीं, ये नया नहीं है, ये वही है, मिथाइल क्लोराइड, जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा था। जब ब्रोमीन, जब अल्केन अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मिथाइल क्लोराइड बना था। ये वही हेलोजिनो अल्केन है। एक और बनाता हूँ इसी का। फिर आपने कहा था दोबारा करते हैं तो बनता है डाइक्लोरो अल्केन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और यही जब ब्यूटेन के साथ होगा तो यूं बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। इसका नाम क्या बनेगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बिल्कुल वही जो चीज हम करते थे, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका ये नाम बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आपने ओ लेवल्स में किए हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलूंगा, कोशिश करूंगा कि हमें समझ आ जाए। अल्कोहल, यू नो दैट, जो न्यू कंपाउंड्स होंगे, एक हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। So what we have done so far, alkane, alkene, alcohol, halogenoalkane and carboxylic acid, ये तो हमारे हमने पढ़े हुए हैं ओ लेवल में। Two new compounds are coming now. We haven't done it before, and I'm writing them their name in a very nice color. They are aldehyde and ketones. ये हमारे टोटल कंपाउंड है।
इसके अलावा भी छोटे छोटे कंपाउंड्स आएंगे, जिस तरह अमाइन आएगा, जिस तरह नाइट्राइल आएगा। वो थोड़े थोड़े कंपाउंड्स हैं, इसलिए उनका मैं मेन मेजर कंपाउंड्स में कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सो वी डन अल्केन, अल्कीन, alcohol we done already. Halogen alkane, yes, we have done. We produce halogen alkane in O levels, nothing more. Carboxylic acid we done in details. जितना कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे है वही कार्बोक्सिलिक एएस में है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द टू डिफरेंट कंपाउंड्स, वी हैवंट डन इट सो फार। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन से जरा स्टार्ट करते हैं, ये देखने में कैसे होंगे। लेट्स सी व्हाट डू दे लुक लाइक। नई चीज है इसलिए पहले इसको डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड्स, सबसे पहले एल्डिहाइड्स, बिल्कुल न्यू कंपाउंड, और ये कीटोन्स। Aldehyde or ketone are very much related to each other. They have the same functional group. And what is that functional group? I'll discuss in a minute. They both are known as carbonyl compounds. इन दोनों को कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आप कहेंगे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। हाँ, लेकिन वो कार्बोक्साइल कंपाउंड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर कार्बोक्साइल कंपाउंड्स, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है फ्रॉम देम। लुक्स लाइक सेम, सी डबल बॉन्ड ओ। जिस तरह अब आपने पढ़ा था ओ लेवल में, प्रोटीन्स एंड नाइलॉन, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप बट दे आर डिफरेंट। Similarly, they have the same functional group, C double bond O ही है, but they are different। ठीक है। एल्डिहाइड होते कैसे हैं? ये इस तरह होते हैं, देखिएगा जरा। H C डबल बॉन्ड H, इसमें एक कार्बन है, इसका नाम बनेगा मेथनल। मेथनल। दो कार्बन आ जाए तो क्या नाम बनेगा? एथनल। ये एथनल। तीन कार्बन आ जाए तो प्रोपनल। ये है जी इसका फंक्शनल ग्रुप। इसको लिखा कैसे जाता है देखिएगा जरा। इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को यूं लिखा, ये जो पहला कंपाउंड है इसको यूं लिखा जाता है HCHO। ये जो CHO है ना, ये शो करता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। इसको देखते हैं, CH3CHO। इसको देखते हैं, इसका क्या बनेगा? CH3CH2CHO। ये एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड है। अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे हैं बिकॉज वी हैवंट डन इट बिफोर, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज न्यू टू कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। नाम क्या बनेंगे इफ यू नेम देम? सो मेथनल, एथनल, प्रोपनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, एनेनन, नननन, नननन। वो जो एक सीक्वेंस है आपकी, आपको पता है क्या करना है। अच्छा, एक चीज देखते हैं, अगर यूं आ जाए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा कंपाउंड होगा? Carboxyl, कार्बोक्सिलिक carboxylic एसिड। acid. ये कौन सा कंपाउंड होगा? एस्टर। Ester. ये क्या होगा? एस्टर। वेरी गुड, ये एस्टर होगा। ये वी डन इन ओ लेवल्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाला एस्टर है। ये कौन सा कंपाउंड होगा?
ये एल्डिहाइड है, अभी 1 मिनट पहले हमने किया, ये एल्डिहाइड है। इसको कैसे लिखा जाता है? यूं लिखा जाता है, CH3CHO। और एक होता है कीटोन। लेट्स डू कीटोन्स। कीटोन में क्या होता है? दरमियान में ये होता है, ये फंक्शनल ग्रुप दरमियान में होता है, इसके इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, तो ये कीटोन होगा। अगर दोनों साइड पे कार्बन है, दरमियान में C डबल बॉन्ड हो है, तो कीटोन होगा, अदरवाइज कुछ और होगा। अभी देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड OH। बोले जी, कार्बन 1 क्या है, कार्बन 3 क्या है? कार्बन 1 कौन सी कार्बन है? कार्बन 1 एल्डिहाइड की कार्बन है। कार्बन 3 कौन सी कार्बन है? ये कीटोन का हिस्सा कीटोन है, की। ये एल्डिहाइड का हिस्सा है, याद रखिएगा। एक और बनाते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। बोले ये कार्बन कौन सी कार्बन है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। इधर से देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। जी बोले, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन 1 कौन सी है? The जी, one with alcohol. कार्बन 1 कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन 3 कौन सी है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। कार्बन 2 कौन सी है? कीटोन। कीटोन की है। दोबारा देखते हैं एक और कंपाउंड, HO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। बोले जी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। बोले कार्बन 1 कौन सी है? Aldehyde. कार्बन 1 एल्डिहाइड। कार्बन 2? Ketone. कार्बन 3? कार्बन 3? तो आपका पर्पल वाला 3 या? ये मेरा 3 है ना। हाँ, पर्पल वाला 3 is a ketone. कार्बन 4? Carboxylic. कार्बन 5? Alcohol. अल्कोहल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी देखते हैं इसका नाम क्या है, C डबल बॉन्ड OOCH3। अच्छा, कीटोन कौन सी कार्बन से स्टार्ट होती है? कार्बन 1 से, 2 से, या 3 से? सबसे छोटी कीटोन में 3 कार्बन होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हो गया C डबल बॉन्ड O, उसके इधर भी कार्बन लगनी है, उसके इधर भी कार्बन लगनी है, तब जाके कीटोन बनेगा। अब देखिएगा, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये गौर से देखिए, इसका नाम क्या है? प्रोपानोन। प्रोपानोन इसका नाम है। इसका नाम क्या है जो राइट पे है? इसका नाम भी प्रोपानोन है। इसका नाम क्या है? इसका स्केलेटल बनाते हैं, पहले इसका नाम देख लेते हैं। ये यूं बनेगा। हाँ जी, जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इसका नाम क्या है? बोले शाबाश। 2-butanol. इसको कहते हैं ब्यूटानोन Butan. या ब्यूटेन 2 ओन। लेकिन ब्यूटेन 2 ओन कहने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी इसका और कोई कंपाउंड बनता नहीं है, कोई और इसका बनता नहीं है ब्यूटेन कीटोन में, तो इसका नाम ब्यूटानोन भी ठीक है। ब्यूटेन 2 ओन भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? ब्यूटानोन। अभी पेंटानोन बनाता हूँ, लेट्स सी, इसके 2-3 आइसोमर्स बनाएंगे पेंटानोन के। सबसे पहले इनका वो बना लेते हैं स्केलेटल। जी बोले, स्केलेटल कैसे बनेगा प्रोपानोन का? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये C डबल बॉन्ड O।
ब्यूटानोन का बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जहां जहां हमें प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में, यू गॉट टू कीप ऑन डिस्कसिंग विद मी, डोंट सिट साइलेंट। ठीक है, मैं आज आपको जिस तरह करा रहा हूं इस तरह बहुत आसान हो जाएगी, आई होप सो, डेज में फिनिश हो जाएगी, एंड देन वी कम टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। छुट्टियों में इंशाल्लाह पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। हुसैन रजा, प्रैक्टिस करनी है बेटा, सब ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो जो यहाँ बैठा हुआ है, जूम यूजर से लेके अहमद हमजा तक, दुआ से लेके उमैजा तक, हमजा से लेके रानिया तक, हरीम से लेके रनीम तक, और हुसैन से लेके मूसा तक, सब प्रैक्टिस करें, काम बैठ के करें, ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। अब मैं बना रहा हूँ एक और, उसका नाम है पेंटानोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सॉरी CH2 CH3। इसका और कोई आइसोमर बनता है? यस, एक तो ये आइसोमर क्या हो गया, पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। जिस तरह कोई चाइना रशिया में पैदा हो ना, तो क्या नाम होगा उसके नाम के साथ पे ओफ लगे ही लगे। ठीक है, ओफ नाम होगा, आमिर तो आमिरोफ, नाम मूसा सो मूसोफ। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जो नाम है सारे ओफ ओफ करके हैं, उन सब बाल्टिक स्टेट्स में। इसी तरीके से ये जो जो कीटोन फैमिली में पैदा होगा उसका नाम ओन करके होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोले क्या नाम बनेगा इसका, सॉरी, अब बोले क्या नाम बनेगा इसका? Penten 3-on. एक्सिल, पेंटेन 3 ऑन। इसका पेंटेन 2 ऑन का हम बना रहे हैं स्केलेटल, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। कैन वी डू इट लाइक दिस? यस, सही है। ये पेंटेन 3 ऑन का बन रहा है, 1 मिनट, ये यूं कर लें, पेंटेन 2 ऑन का ये बन गया इसका। ठीक है, और पेंटेन 3 का बनाते हैं तो ये बन जाएगा, ये पेंटेन 3 ऑन का बन जाएगा। देखिएगा, इनके स्केलेटल भी साथ साथ बनाते जाएंगे। पेंटेन 2 ऑन का ये लेफ्ट पे बने हुए हैं, पेंटेन 3 ऑन का आई मेड ऑन द राइट। This is these are the isomerism we're doing at the moment. इनके आपस के आइसोमर्स बन रहे हैं। इसका एक और आइसोमर भी बनाते हैं, ये देखिए एक और भी बनाते हैं, वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। ले जी, नाम कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? अब select the longest carbon chain, yes, done, containing the carbon which is attached to the functional group। functional group कौन है यहाँ पे, ये है functional group, ये functional group है हमारा। कौन सा functional group है बोले? कीटोन functional group। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? Left. लेफ्ट से, तो ये 1 2 3 4, क्या नाम बनेगा इसका, 3 methyl ब्यूटेन 2 ऑन, या ब्यूटानोन भी कह सकते हैं, 3 methyl ब्यूटानोन भी ठीक है। इसका स्केलेटल कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे मिथाइल लग गया। समझ आ रही है सबको? So what we have done today, Yes. aldehyde and ketone, the new things, and the second new thing we done in, that is skeletal formula. So we done 2 new things today. Yes. Okay, एक और चीज देखिएगा, just some सर information। वो कॉपी करने का। सर दूसरी साइड पे।